Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying ecosystem. In the previous lecture we have studied terrestrial ecosystem. In this lecture we will study aquatic ecosystem. Now start the lecture and understand what is ecology for revision. See, the study of organisms, the study of the environment, the study how the organisms interact with each other, and the study how the organisms interact with their environment is known as ecology. The term ecology was first used by Ernest Haeckel in 1869, and Alexander von Humboldt is the father of ecology. E.P. Odum is considered the father of ecology in modern context, right? And Professor Ramdev Misra is considered the father of ecology in Indian context, or we can say that the Indian father of ecology is Professor Ramdev Misra. Now, what is ecosystem? See, if this is asked as a 3-marker question, then we can write this definition. An ecosystem is the structural and functional unit of the nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. Right? Ecosystem term was first used in 1935 by A.Z. Tonsley. Right? We are studying the types of ecosystem, and in the previous lecture we have studied the terrestrial ecosystem, right? So on the basis of development of ecosystem, the ecosystem may be categorized into natural ecosystem and man-made ecosystem, right? The ecosystem which occurs or develops naturally, उसको ही क्या कहा जाता है? Natural ecosystem कहा जाता है. और the ecosystem which is developed by or created by humans is known as man-made or artificial ecosystem, जिसको हमने previous lecture में पढ़ा था. In this lecture we will study aquatic ecosystem. तो 3 मार्कर में आपसे जो है नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है. तो सिंपली द इकोसिस्टम विच अकर्स नेचुरली और डेवलप्स नेचुरली इज नोन एज नेचुरल इकोसिस्टम. और नेचुरल इकोसिस्टम को भी फिर हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वाटिक इकोसिस्टम में. व्हाट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट? तो 3 मार्कर के लिए आप डेफिनेशन याद रखेंगे, राइट? द इकोसिस्टम विच अकर्स और डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और land area is known as terrestrial ecosystem, right? For an example, forest ecosystem, grassland ecosystem and desert ecosystem. Now let's study the aquatic ecosystem. What is the definition? The ecosystem which occurs, right, or develops in water is known as aquatic ecosystem, जो कि on the basis of salinity ये further 3 में क्लासिफाई किया जाता है. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, देन मरीन इकोसिस्टम, देन ट्रांजिशनल इकोसिस्टम. सो नाउ लेट्स स्टडी द एक्वाटिक इकोसिस्टम, right? So if this is asked as a 3-marker question, then we can write the definition. See, the ecosystem which occurs or develops in water or water body is known as aquatic ecosystem, or in other words you can write aquatic ecosystem refers to plant and animal communities occurring in water or water bodies. Or we can write the previous definition, right? The ecosystem which occurs or develops in water bodies is known as aquatic ecosystem. फिर on the basis of salinity and salt content, right, this is classified, or aquatic ecosystem is classified in 3 subgroups, right? In 3 subgroups. The first is freshwater ecosystem, the second is marine ecosystem, and the third is brackish water ecosystem, right? Freshwater ecosystem, marine ecosystems, right, and brackish water ecosystem,
right? Now let's understand the PPT, right? What is the full form of PPT? Parts per थाउजेंड, राइट? पार्ट्स पर थाउजेंड, राइट? तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 1000 पार्टिकल हैं, अगर वाटर के क्या है, वाटर के 1000 पार्टिकल्स हैं, तो उन 1000 पार्टिकल्स में से सॉल्ट के कितने पार्टिकल होंगे, इसीलिए इसको मापा जाता है। जैसे 5 ppt, विच मीन्स दैट कि यहाँ पर सॉल्ट के 5 पार्टिकल्स हैं अबव, या हम कह सकते हैं कि 5 पार्ट्स पर 1000, राइट? तो 5 पार्ट्स पर क्या हो जाएंगे, 1000। तो सॉल्ट के 5 जो हैं पार्टिकल होंगे पर क्या हो जाएंगे, 1000, ठीक है? तो इस आधार पर जो है सैलिनिटी को क्या किया जाता है, या सॉल्ट कंटेंट को मेजर किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सो द इकोसिस्टम विच अकर्स और डेवलप्स इन वाटर where the salinity or salt content is less than 5 ppt, right? तो लेस देन यदि सॉल्ट कंटेंट 5 ppt होता है तो उसको ही फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। एंड फॉर एन एग्जांपल द इकोसिस्टम ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड ponds. Now marine ecosystem, so the ecosystem which occurs or develops in water where the salinity or salt content is equal to and above, right? Equal to and above 35 ppt, उसको ही क्या कहा जाता है, मरीन इकोसिस्टम कहा जाता है। सच एज इकोसिस्टम ऑफ ओशियंस एज वेल एज सीज, राइट? फिर बाकी के ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स किसके हैं, यहाँ पर ब्रैकिस इकोसिस्टम के हैं। Now third is brackish water ecosystem. The ecosystem which occurs or develops in water where the salinity or salt content is between 5 ppt, 5 parts per 1000 to 35 parts per 1000, right? तो यदि salinity और salt content 5 pp to 35 ppt होता है तो over there जो इकोसिस्टम होता है वो कौन सा होता है, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। एंड द एग्जांपल्स ऑफ ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम, द फर्स्ट इज एस्चुरी, देन मैंग्रोव्स, एंड थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वेटलैंड्स, जिनके बारे में हम जो है आगे जाकर बहुत ही अच्छे से और डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स स्टडी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट? तो ये जो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, अगेन दिस में बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम? डिस्क्राइब द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट? सो लेट्स स्टडी द फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, राइट? What is the definition? See, simply we can say that the ecosystem which occurs or develops in water where the salinity or salt content is less than 5 ppt or 5 parts per 1000, right? And this is of two types. The first is static और still water, या जिसको ही क्या कहा जाता है, lentic ecosystem कहा जाता है, राइट? अब यदि फ्रेश वाटर क्या होगा, स्टैटिक होगा या उसका फ्लो नहीं होगा, राइट? तो उसको ही क्या कहेंगे, स्टैटिक इकोसिस्टम या स्टिल वाटर इकोसिस्टम, या उसको ही लेंटिक इकोसिस्टम विच इज फाउंड इन पॉन्ड, लेक, राइट, एक्सेट्रा। सेकेंड इज रनिंग वाटर, राइट? रनिंग वाटर, ये जिसको क्या कहा जाता है, लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। सो द इकोसिस्टम विच अकर्स और डेवलप्स इन रनिंग फ्रेश वाटर इज नोन एज रनिंग और लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम which is found in springs, right, mountain brooks, right, streams and rivers, राइट? यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि जो बॉक्स हैं और जो स्वेम्स हैं, राइट, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये दरअसल किस में आता है, ब्रैकिश वाटर में आता है, राइट? सो सिंपली इफ द फ्रेश वाटर, if the ecosystem which occurs or develops in static still water ecosystem, then this is known as lentic ecosystem, for an example pond and lake. Second, if the ecosystem
occurs or develops in running fresh water, then this is known as low-tech freshwater ecosystem. For an example, ecosystem which is found in spring, mountain brooks, streams and rivers. Now second is marine ecosystem, right? This may be also asked as a 5-marker question. What is aquatic ecosystem, right? Describe the marine ecosystem, right? So at first the definition: the ecosystem which occurs or develops in water where salinity or the salt content is equal to and above, right? Equal to and above 35 parts per thousand or 35 ppt is known as marine ecosystem, right? And the examples of marine ecosystem are: first, open sea, coral reef, coastline and barrier islands, right? Let's study these one by one. The first is open sea. See, open sea is the main part of sea or ocean that is away from coastline और क्या हो जाएगा, गल्फ हो जाएगा, right? So the main part or portion of sea or ocean is known as open sea that is away from coastline and gulf. Second क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोरल रीफ, राइट? अब जो कोरल रीफ है, कोरल रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ मरीन इकोसिस्टम, right? So coral reef is an example of marine ecosystem, and coral, here the coral is a type of animal, right, that lives in symbiosis with a single celled called zooxanthellae. तो यहाँ पर सिम्बायोसिस क्या होता है? देखिए, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप में होता है जिसमें बोथ द पार्टीज गेट बेनिफिट, राइट? तो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें बोथ द पार्टीज गेट जो है बेनिफिट। तो यहाँ पर ये सिम्बायोसिस में रहता है किसके साथ में? एल्गी के साथ में। तो यहाँ पर जो सिंगल सेल्ड एल्गी है जिसका नाम क्या हो जाएगा? जूज़ैंथेले हो जाएगा। सो यदि ये 3 मार्कर में पूछा जाए तो वी कैन राइट द 3 फैक्ट्स। द फर्स्ट इज कोरल रीफ इज एन एग्जांपल ऑफ मरीन इकोसिस्टम। Coral lives in symbiosis with a single-celled algae known as zooxanthellae, and coral is a type of animal. अब ये सिम्बायोसिस में रहता है, तो इस सिम्बायोसिस में जूज़ैंथेले, और आपको पता है कि जो एल्गी होती हैं, राइट, एल्गी हैज क्लोरोफिल, देयरफॉर एल्गी सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो यहाँ पर जूज़ैंथेले जो कि एल्गी है ये फूड को सिंथेसाइज करती है एंड प्रोवाइड फूड्स to coral, and coral in return provides habitat to zooxanthellae. और जो कोरल्स हैं, कोरल्स आर यूजुअली फाउंड इन वार्म एंड क्लीन सी वाटर, या जहां पर पॉल्यूशन नहीं होता है। ड्यू टू हाई डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, कोरल रीफ्स आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उन पर हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, और यहाँ पर कोरल रीफ में भी हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, एज वेल एज देयर इज अ हाई इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, देयरफॉर कोरल रीफ्स आर आल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, एंड कोरल इज अ की स्टोन स्पेसीज, राइट? नेक्स्ट इज बैरियर आइसलैंड्स, राइट? सो व्हेनेवर ओशियन में या सी में जो पॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, या फिर एक तरीके से हम ये कहें कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर प्लेस में क्या होते हैं, उनका सेडिमेंटेशन होता है और वो एग्रीगेट हो जाते हैं, उनका सेडिमेंटेशन होता है, तो वहाँ पर इस तरीके से क्या बन जाता है? बैरियर बन जाता है, राइट? उसको ही क्या कहते हैं? बैरियर आइसलैंड कहते हैं। तो बैरियर आइसलैंड्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉइल इन द सी। Next is coastline, right? So coastline ecosystem, the zone of extreme diversity that lies between the low tide and high tide zones where sea and ocean meet, right? उसको क्या कहते हैं? कोस्टलाइन कहते हैं। और यहाँ पर एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी होती है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि यहाँ पर जो सी या ओशियन है वो किससे मीट करता है? लैंड से। इसीलिए दिस इज द प्लेस वेयर जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, राइट, बोथ
जो है ये इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या है पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, एक्सट्रीम डाइवर्सिटी होती है। तो कोस्टलाइन इज द जोन ऑफ एक्सट्रीम डाइवर्सिटी दैट लाइज बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड जोन्स where the sea and ocean meet the land. Right? Now third is transitional or brackish water ecosystem. Right? So in this way we have studied, right, we had studied the freshwater ecosystem and marine ecosystem. Now let's study the transitional or brackish water ecosystem. Right? So what is brackish water ecosystem? Right? See, हम सिंपली कह सकते हैं द डेफिनेशन फॉर 3 मार्कर, द इकोसिस्टम विच अकर्स और डेवलप्स इन वाटर वेयर द सैलिनिटी और साल्ट कंटेंट इज बिटवीन 5 ppt to 35 ppt is known as brackish water ecosystem or transitional ecosystem. Examples of brackish water ecosystem are estuary, then mangrove, then wetland. Right? And जो वेटलैंड है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड, तो वेटलैंड्स में स्वैम्प, राइट, मार्स, बॉग और फेन, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। सी द क्वेश्चन हैज नॉट आस्क्ड इन द MPPSC रिगार्डिंग एस्चुरी, राइट, स्वैम्प और मार्स, बट in UPSC and in other PCS, right, many questions have been asked in the MPPSC mains examination, right? So here we have to prepare estuary for 5 marker, mangroves for 5 marker, wetlands for 5 marker, because 5 marker question may be asked in the examination, right? Explain the importance of estuary ecosystem, or what are the merits of mangroves, right? Or question may be asked what is wetland and why wetland is necessary for the environment, right? So these type of question may be asked in the examination, right? So at first we would study estuary, then we will study the importance of estuary, right? So first is estuary. What is estuary? See, estuary is a special place, राइट? क्योंकि अगर आप देखें तो जो रिवर्स है, रिवर्स में क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, और जहां पर ये किसी ओशियन से मीट करती हैं, राइट, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओशियन हो जाएगा लेट्स से, राइट, तो यहाँ पर जो सिस्टम डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं, राइट? सो एस्चुरी इज अ स्पेशल प्लेस which is strongly affected by tidal action and where river, sea and land come together to form a special natural place जिसमें इकोसिस्टम क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अर्थात एस्चुरी वहाँ पर डेवलप होती हैं जहाँ पर लैंड, या हम ये कह सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, और जहाँ पर एक्वेटिक इकोसिस्टम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं, तो जहाँ पर वाटर एंड लैंड क्या करते हैं, मीट करते हैं, उस एरियाज में क्या है, जो है एस्चुरी डेवलपमेंट होता है, ठीक है? और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की मोस्ट क्या है, प्रोडक्टिव साइट्स हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं डेफिनेशन या जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएगी रिगार्डिंग एस्चुरी। तो एस्चुरी इज अ स्पेशल प्लेस which is strongly affected by tidal action and where river, sea and land come together to form a special natural place, right? Along with tropical rainforest and coral reefs, estuaries are considered the world's most productive sites. What are the benefits? What are the benefits of estuary? What are the benefits? What are the merits of, and what are the characteristics of estuaries? So the first is estuary purifies the water by absorbing sediments and pollutants. तो जो एस्चुरी होती हैं, एस्चुरी पोल्यूटेंट्स को और सेडिमेंट को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड प्यूरिफाई द वाटर। सेकेंड, द प्लांट्स फाउंड इन एस्चुरीज प्रिवेंट कोस्टल इरोजन एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सी स्टॉर्म, राइट? थर्ड क्या हो जाएगा, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, राइट? तो जो एस्चुरी है उसमें प्लांट्स भी पाए जाते हैं, राइट? और यहाँ का जो इकोसिस्टम है which helps to recharge the underground
वाटर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड फोर्थ इज estuaries with their wetlands, creeks, lagoons, mangroves, right, and seagrass beds are rich in natural resources including fisheries, right। तो इस तरीके से ये चार जो है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। पहला क्या है, estuaries purify the water। सेकेंड, the plants found in the estuaries prevent coastal erosion, right, and reduce the effect of the storm। Third, recharge the groundwater, and four, provides natural resources, right। Now let's study mangroves। सबसे पहले मैं आपको मैंग्रोव्स को जो है जनरल वर्ड्स में बताना चाहूँगा। देखो, मैंग्रोव्स ऐसे ट्रीज होती हैं जिनकी रूट्स बहुत ही क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और एक तरीके से वेव फॉर्म में होती हैं, राइट। और ये इस तरीके से इनके जो रूट्स हैं वो क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो मैंग्रोव्स आर दोज ट्रीज विच हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स, जिनकी वजह से ये वाटर में भी स्टैंड कर पाते हैं। साथ ही साथ सेकेंड इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो है ये सॉल्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, which means mangroves are those trees which can survive in high salinity water। तो ये दो क्वालिटीज अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी की जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैंग्रोव्स के वो आप इजीली बता सकते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर मैंग्रोव्स 3 मार्कर में पूछी जाती है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, राइट। मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स लिटोरल, अर्थात ये कहां पर, सी शोर के नियर जो है डेवलप होते हैं, राइट। सो मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, राइट, which are salt resistant and जो है कोस्टल इरोजन के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंग्रोव्स के जो बेनिफिट्स क्या हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो है मैंग्रोव्स की जो है पूरी की पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंग्रोव्स क्या है, सी मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स लिटोरल और नियर सी शोर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, विच मीन्स मैंग्रोव्स रिप्रेजेंट आ लिटोरल इकोसिस्टम जो कि सी शोर के पास में पाया जाता है। एंड मैंग्रोव्स आर एवरग्रीन फॉरेस्ट दैट ग्रो इन शेल्टर्ड लो लेइंग कोस्ट, एस्चुरीज, मड फ्लैट्स, टाइडल क्रीक्स, राइट, बैकवाटर्स, मार्सेस, लगून्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, राइट। और ये कोस्टल सॉइल इरोजन को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स पाई जाती हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज रूट्स, राइट, दीज मैंग्रोव्स हैव एन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इनमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म पाया जाता है जिसकी वजह से ये एक्सेस सॉल्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, राइट। इनमें कोलुमिनर जो रूट्स हैं, राइट, मैंग्रोव्स हैव कोलुमिनर रूट्स व्हिच हैव्स टू स्टैंड इन द वाटर। और वही जो रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं उनसे ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। द टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स आर रेड मैंग्रोव्स, ब्लैक मैंग्रोव्स एंड व्हाइट मैंग्रोव्स। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स? What are the benefits of mangroves? The first is mangroves protect the coastal land from tsunami, hurricanes and floods. क्यों? क्योंकि जो mangroves होते हैं, mangroves has a special type of roots, right? For an example, columnar roots, जिनकी वजह से यह वाटर में भी स्टैंड कर पाते हैं। और ये जो रूट्स हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये सुनामी के, हरिकेन्स को और फ्लड्स से कोस्टल लैंड्स को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो दे प्रोटेक्ट कोस्टल लैंड। सेकेंड, मैंग्रोव्स इनहांस द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। आल्सो मैंग्रोव्स हैव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म दैट रिमूव्स एक्सेस सॉल्ट कंटेंट, राइट। साथ ही साथ मैंग्रोव सपोर्ट्स न्यूमरस फ्लोरी, राइट, एविफ्यूना एंड वाइल्ड लाइफ।
अगर हम देखें तो जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स प्रोवाइड अ सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग, स्वेपनिंग एंड रियरिंग ऑफ सेवरल फिशेस, राइट। और ये क्या होते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं। साथ ही साथ ये फ्लड कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नेचुरल वाटर प्यूरिफायर होते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो मैंग्रोव्स जो है वो कोस्टल लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैंग्रोव्स इनहेंस द नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये जो है मैंग्रोव सपोर्ट न्यूमरस फ्लोरा, एविफोना एंड वाइल्ड लाइफ। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल वाटर प्यूरिफायर होते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। क्लियर। चलिए, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि होना चाहिए था कोरल रीफ में, राइट। तो वी हैव स्टडीड कोरल रीफ्स प्रीवियसली। In India, coral reefs are found in Andaman and Nicobar, and along with Andaman and Nicobar, coral reefs are also found in Lakshadweep, Gulf of Mannar and Gulf of Kutch, right. So we have studied mangrove as well as benefits of mangroves, right. Now let's study wetland. See, wetland क्या होते हैं, जब कभी भी जो वाटर कंटेंट है वो सॉइल में क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, वेटलैंड कहा जाता है। वेटलैंड दरअसल क्या होते हैं, पीटलैंड होते हैं जिनमें वाटर होता ही होता है, राइट। सो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श और पीटलैंड विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोविंग, चाहे वो फ्रेश हो, ब्रैकिश हो, ये वेटलैंड की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। क्लियर। सो वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श और peatland with water that is static water, flowing, fresh, brackish or saline water, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 मीटर। ये किसकी, वेटलैंड की क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। Wetlands are the transition zone between the terrestrial and aquatic ecosystem, right। तो जो टॉरिस्ट, ये अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो आंसर क्या होगा, वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन जोन होते हैं बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो वेटलैंड्स हैं वो या तो इनलैंड भी क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, और कोस्टल एरियाज में भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो द एग्जांपल्स ऑफ मरीन और कोस्टल वेटलैंड्स आर, द फर्स्ट इज गल्फ और स्ट्रेट, सेकंड कोरल रीफ, थर्ड इज एस्चुरी, लगून एंड मैंग्रोव्स। एंड वी हैव स्टडीड मैंग्रोव्स, राइट, वी हैव स्टडीड मैंग्रोव्स, एस्चुरी, कोरल रीफ, राइट। नाउ इनलैंड वेटलैंड्स, तो इनलैंड वेटलैंड्स में क्या आ जाएगा, डेल्टा, देन क्रीक, देन लेक और पॉन्ड, डेल्टा, क्रीक, लेक और पॉन्ड, मार्श, बॉग एंड स्प्रिंग। Here we must come to know what is the difference between marsh, bog, right, swamp, etc, etc. Therefore we must have a little bit information regarding swamp, marsh, bog and fen, right, क्योंकि यहाँ से भी या तो 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि these are the examples of wetlands, right. So let's study swamp. So देखिए, अब swamp की डेफिनेशन क्या है अगर 3 मार्कर में पूछी जाए तो, swamp are such wetlands where such trees are prominently found which are adapted to survive in stagnant water. तो मतलब स्वैम्प ऐसे वेटलैंड्स होते हैं जहां पर स्टेगनेंट वाटर पाया जाता है और इसी स्टेगनेंट वाटर में जो है ट्रीज भी पाए जाते हैं। तो स्वैम्प आर सच वेटलैंड्स वेयर सच ट्रीज आर प्रोमिनेंटली फाउंड व्हिच आर एडॉप्टेड टू सर्वाइव इन स्टेगनेंट वाटर, राइट। और ये जनरली लो लैंड्स अराउंड द रिवर्स पाए जाते हैं, राइट। कहाँ पर होते हैं, ये जो रिवर्स होते हैं, रिवर्स के नियर बाई जो लो लैंड्स होते हैं वहाँ पर जो स्टेगनेंट वाटर होता है वहीं पर जो है स्वैम्प क्या होते हैं, डेवलप
होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लड सबमर्ज्ड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो स्वैम्प्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लड सबमर्ज्ड फॉरेस्ट, राइट। और स्टेगनेंट वाटर जो है वो स्वैम्प में पाया जाता है। द डेप्थ ऑफ वाटर हियर इज ग्रेटर देन मार्स, राइट, एंड मिनरल्स आर फाउंड इन द सॉइल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मार्स। मार्स इज सच वेटलैंड विच रिसीव वाटर थ्रू द सरफेस रन ऑफ और रेनफॉल, राइट। अर्थात जो मार्स है, इनको जो वाटर है वो रिवर से प्राप्त नहीं होता, किससे प्राप्त होता है, रन ऑफ से या फिर रेनफॉल। तो मार्स आर सच वेटलैंड्स विच रिसीव वाटर थ्रू सरफेस रन ऑफ एंड क्या हो जाएगा, रेनफॉल, राइट। एंड वाटर हियर इज सॉलो एंड फ्लोज वेरी स्लोली। यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही जो है लो अमाउंट में पाए जाते हैं। देयरफॉर वीड्स एंड ग्रासेस आर प्रोमिनेंटली फाउंड एंड दे आर जनरली फाउंड एट द माउथ्स ऑफ द रिवर और डेल्टास। सो जो मार्स हैं वो माउथ ऑफ रिवर्स में पाए जाते हैं या डेल्टास के यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बॉग। सी, बॉग्स आर सच वाटरलॉग्ड पीटलैंड्स और व्हेन यू एंटर द बॉग, आप उसमें क्या होते धंसते चले जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, दलदल कहा जाता है, राइट। सो बॉग्स आर वाटरलॉग्ड पीटलैंड्स इन ओल्ड लेक बेसिन्स और डिप्रेशंस इन द लैंडस्केप। ऑलमोस्ट ऑल वाटर इन बॉग्स कम्स फ्रॉम क्या हो जाएगा, रेनफॉल। तो बॉग्स आर वाटरलॉग्ड पीटलैंड्स, राइट। अब अगर हम देखें तो द वाटर हियर इज स्टेगनेंट। कैसा होता है, स्टेगनेंट होता है, विच नाइदर कम्स इन और गोज आउट। यहाँ पर स्फेग्नम मॉस, राइट, प्लांट्स एंड सच एज, जो प्लांट्स है जैसे पिचर प्लांट है, सैंड्रियो etc आर फाउंड हियर। न्यूट्रिएंट्स फाउंड आर वेरी लेस, और इसी वजह से यहाँ पर जो है प्लांटेशन या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन मिनिमम होता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ बॉग, वेयर बॉग्स आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूज कार्बन सिंक्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ह्यूज कार्बन सिंक्स होते हैं। नाउ फेन क्या है, देखिए जो वेटलैंड, अगर किसी भी वेटलैंड में अगर जो ग्राउंड वाटर है वो इनफ टू ग्राउंड, राइट, जो वाटर टेबल है अगर वो इनफ टू ग्राउंड हो जाए या ग्राउंड के पास में आ जाए तो वहां पर भी क्या बनता है, फेन बनता है। तो व्हेन द वाटर लेवल इज क्लोज इनफ टू द ग्राउंड it acts to saturate the wetland causing the formation of a fen. The amount of nutrients in the soil is more than in the swamp due to which the development of some plant species become possible here, right। और इनको जो वाटर है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वाटर टेबल से प्राप्त होता है। So in this way we have understood what is swamp, right, and we have prepared swamp, right, marsh, bog and fen for 3 marker as well as the 5 marker. Now for 3 marker question we have to remember the factual information regarding wetlands in India, right. So this data has been taken from the official website of the government of India, therefore this data is most important. Now इंडिया में जो टोटल वेटलैंड्स हैं उनकी कितनी हो जाएगी, 1225 हो जाएगा। सो देयर आर टोटल 1225 वेटलैंड्स इन इंडिया। आउट ऑफ 1225 115 वेटलैंड्स आर सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स। ये 3 मार्कर में पूछा जाता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स आर इन इंडिया। सो 115, राइट। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि देयर वाज अ कन्वेंशन टू कंजर्व द वेटलैंड्स इन द वर्ल्ड, राइट, जो कि कहां पर हुआ था, रामसर ईरान में हुआ था। और उसी कन्वेंशन के तहत ही जो वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो 75 वेटलैंड्स जो हैं वो रामसर वेटलैंड्स की लिस्ट में इंक्लूड हो चुके हैं। तो देयरफॉर दिस डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो देयर आर टोटल 1225 वेटलैंड्स इन इंडिया। आउट ऑफ 1225 115 wetlands are significant wetlands in India, right.
and 75 sites are listed in Ramsar wetlands list, right? And 1350 are other wetlands in India, right? So this is the detail of Ramsar sites, right? Ramsar sites, and as on 15th, राइट 5/8/2020, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है। और यहाँ पर जो है वो जो जितने भी वेटलैंड्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में है, असम में है, बिहार, गुजरात, गोवा, हरियाणा, राइट, जम्मू एंड कश्मीर। अब आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के चारों वेटलैंड्स के आपको नाम पता होने चाहिए। दिस में बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन। The wetlands of Madhya Pradesh. So there are total 4 wetlands in Madhya Pradesh. The first is right Bhoj wetland, जो कि कब 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था, right? Second thing is that ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। So the first is Bhoj wetland, right? So the Bhoj wetland जिसको रामसर साइट का जो है दर्जा कब दिया गया था 2002 में, सॉरी कब दिया गया था 2002 में। तो फर्स्ट वेटलैंड ऑफ फर्स्ट वेटलैंड ऑफ मध्य प्रदेश एमपी, द फर्स्ट वेटलैंड ऑफ मध्य प्रदेश इज भोज वेटलैंड, जिसको 2002 में क्या किया गया था, रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। सो द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ मध्य प्रदेश इज भोज वेटलैंड। देन सेकेंड इज सिरपुर वेटलैंड, जिसको 2022 में इंक्लूड किया गया है। देन थर्ड सांख्य सागर एंड फोर्थ इज यशवंत सागर। तो सिरपुर वेटलैंड, सांख्य सागर एंड यशवंत सागर, इन तीनों को 2020 में क्या किया गया है, रामसर साइट में जो है ऐड किया गया है, इसीलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। और अगर आप देखें तो वर्तमान समय में देयर आर टोटल 75 रामसर साइट्स इन इंडिया, राइट। चलिए नाउ लेट्स स्टडी इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज इकोटोन और व्हाट इज ईज इफेक्ट, राइट, व्हाट इज इकोटोन और व्हाट इज ईज इफेक्ट। अब इकोटोन को समझते हैं। देखिए जब कभी भी the area between two ecosystems, so this is ecosystem first, this is ecosystem second, so the transition area between two ecosystem is known as ecotone। और यहाँ पर जो दोनों इकोसिस्टम्स होते हैं उनके ही कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें पाई जाने वाली ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ द स्पीसीज क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसको ही क्या कहा जाता है, ईज इफेक्ट कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज इकोटोन एंड व्हाट इज ईज इफेक्ट, सो यू कैन आंसर फर्स्ट व्हाट इज इकोटोन, राइट। सो एन इकोटोन इज एन एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, राइट, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पर मार्शलैंड हो जाएगा। इकोटोन जो है, इकोटोन आर ऑफ ग्रेट एनवायरमेंटल importance. Why? Because of ease effect. What is ease effect? Ease effect refers to the changes in population or community structures that occur at the boundary of the two habitats. Right? तो कुल मिलाकर ease effects refers to the changes in population और community structures जो कि टू हैबिटेट की जो बाउंड्री है उस पर अकर होता है, और इसी वजह से देयर इज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन दीज रीजन्स, राइट, दिस इज नोन एज ईज इफेक्ट, राइट। और इसीलिए दीज आर जो इकोटोन्स आर ऑफ ग्रेट एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, राइट। द स्पीसीज फाउंड हियर इज नोन एज ईज स्पीसीज, right? So this is the example of ecotone. Here is land ecosystem, right? Here is aquatic ecosystem, और this is the transitional zone. तो यहाँ पर जो इसको क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। क्लियर? अगर आप देखें तो जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो है वो लैंड पर भी सर्वाइव करता है और जो है कभी रिवर में भी आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर वेरियस टाइप ऑफ जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ईज इफेक्ट होता है। नाउ फूड चेन,
अब ये तो क्वेश्चन जो है जनरली हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर food chain for 3 marker as well as 5 marker, right? And after that we have to study the trophic level, then food web. So what is food chain? देखिए, food chain refers to the order of events in an ecosystem, right? जहां पर जो organisms हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है और इस तरीके से जो है फूड चेन क्या होती है, डेवलप होती है. उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, फिर प्रोड्यूसर को जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है टर्सरी कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है. तो इस तरीके से फूड चेन क्या होती है, डेवलप होती है. अगर ये एग्जाम में लिखने को आ जाए तो सबसे पहले हम फूड चेन की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन. तो फॉर 5 मार्कर हम पहले फूड चेन की डेफिनेशन लिखेंगे. अ फूड चेन रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स in an ecosystem where one organism eats another organism and later that organism is consumed by another larger organism. The flow of nutrients and energy from one organism to another at different trophic level forms food chain, right? तो जो different trophic level है, right, उनमें न्यूट्रिएंट्स का और एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाना ही जो है किसको तैयार करता है, फूड चेन को. तो ये भी 3 मार्कर पे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं. द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल फॉर्म्स फूड चेन. और फूड चेन का इंपॉर्टेंस क्या है कि फूड चेन से ही हम फीडिंग पैटर्न समझ सकते हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी हम जो है समझ सकते हैं. सो वी कैन एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द फीडिंग पैटर्न एंड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ द वर्ड इज ट्रॉफिक लेवल. अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है उसको समझते हैं. तो देखिए, ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू द सीक्वेंशियल, right? Trophic level refers to the sequential stages in the food chain starting with the producers at the bottom. क्योंकि हमको ये तो पता है कि फूड चेन में एनर्जी का फ्लो होता है. अब जो एनर्जी है वो सबसे शुरू में सन की एनर्जी है उसको जो प्रोड्यूसर्स हैं वही क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो वहां से फिर उस एनर्जी का क्या होता है, सीक्वेंशियल फ्लो होता है, राइट. तो इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और ये 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है. ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल रिफर्स टू द सीक्वेंशियल स्टेजेस इन अ फूड चेन स्टार्टिंग विद producers at the bottom followed by primary, secondary and tertiary consumers, and every level in food chain is known as trophic level. अब यहाँ पर the most important thing you have to keep in your mind, the first is that कि देखिए, the ultimate source of energy is the sun, right? And the plants synthesize their own food in the presence of sunlight, therefore these are known as producers. तो जो producers हैं जो कि अपना food synthesize करते हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. तो प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड और इनमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है. कौन सा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है, एग्जांपल के लिए ग्रास, ट्रीज एंड फाइटोप्लैंक्टन जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं. देन प्रोड्यूसर्स को जो कंज्यूम करते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वालों को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है और प्राइमरी कंज्यूमर्स में सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है, जैसे ज़ूप्लैंक्टन, ग्रास होपर और कॉम. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को जो कंज्यूम करता है उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है और सेकेंडरी कंज्यूमर में थर्ड ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है जिनको कार्निवोर कहा जाता है, जैसे बर्ड्स है, फिशेज हैं या वुल्फ है. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करता है उसको टर्सरी कंज्यूमर कहा जाता है और टर्सरी कंज्यूमर में जो है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पाया जाता है, जैसे मैन एंड क्या हो जाएगा, लायन. Right? Now food web. What is food web? See, several interconnected food chains form a food web. तो ये 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन हो जाएगी. जैसे देखिए यहाँ पर जो ग्रास होफर है, ग्रास होफर को अगर
जो है फ्रॉग ईट करता है, तो ये एक फूड चेन हो जाएगी। बट यहाँ पर ग्रॉस हॉपर को यदि जो है फ्रॉग ईट करता है और फ्रॉग को यदि स्नेक ईट करता है तो ये दूसरी क्या बन जाएगी, यहाँ पर फूड चेन बन जाएगी, राइट। या इस तरीके से ये थर्ड जो है बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि इंटरकनेक्टेड जो फूड चेन्स होती हैं उनसे किसका निर्माण होता है, फूड वेब का। सो 3 मार्कर के लिए द सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स form a food web and a food web is similar to a food chain but the food web is comparatively larger than food chain. Occasionally a single organism is consumed by many predators or it consumes several other organisms. Therefore जो है food web क्या होती है, develop होती है. That food web is able to show the proper representation of energy flow and it displays the interconnections between different organisms. So this is the importance of food web. So in this way we have studied the aquatic ecosystem. Along with aquatic ecosystem we have studied the food chain, food web, right, trophic level as well as ecotone. Now we will meet in upcoming lecture. Till then, thank you.